Welcome, sir. Thank you very much for your time. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much. Pritamji has said many things about me. The first thing is more important, rather the most important thing that he said that I'm basically a teacher. And started my teaching career long back, 1959. So there are so many things that I want to share with you, and I'll see how much I am able to do. And I'll do only up to the extent where I am satisfied that yes, I've done it. Rest, of course, we'll be meeting many more times. This is not the only workshop. So, my area of specialization, of course, accountancy is there, but over the years, accountancy projects were introduced in 2003. Since then, I've been working for first 3 years for CBSE, and then, of course, of my own, bringing new areas. And the way the project should be prepared. That was one area which is very dear to me, and I always prepare a new project for my new workshop. And the other area has been voucher-based bookkeeping. There were only two approaches earlier. One was based on journal, from journal to ledger, and from ledger to trial balance. That was one approach. Second one was, which we call direct approach, that is cash book, purchase book, sale book, return, inward, outward, VR, PT, all these subsidiary books, they are straightaway posted to ledger, and then we trial balance. There is a third one also, and which is extensively followed in small business houses, which I visited in various mandis to find out from there how they maintain the accounts. And I was surprised that they were not following any of these. They were following the voucher based. So I worked on that when Father Konankar was the chairman of CBSE. I gave a presentation before him. He said, go ahead, change this system, make it at least more acceptable and utility based for the students, so that when they are out of the school, they get a job. Even now, I find BCom honors students, when they pass out, if I ask them to prepare a voucher for a rent, prepare a voucher, they say rent account debit to cash is fine, but voucher for rent. Even our computers accept only vouchers these days. So a voucher based, it eliminates journal at all. It is based on 3 vouchers, debit vouchers, credit vouchers, and transfer vouchers. They are posting. That is very interesting. And the other day, somebody told me that when I was saying that a new topic has been introduced in the CBSE table, and the teacher, she immediately tells me, sir, only the theory is there. Only the theory is there. I said, well, for the students it may be theory, but the teacher must know how to record the accounting part of it. So similar is the case with the vouchers. Vouchers, we tell them only 3, but the next part was so wonderful that when I went to see how these businessmen or business houses make a record, they had a day book. All vouchers were posted in the day book. And in some cases, I found the debit side on
Not left hand side, right hand side. Surprising. Debit side of the debug on the right hand side, and our students will not accept this, and they will not get a job. They will say, okay, you please excuse us. We need somebody who accepts how the accounts are maintained. We are maintaining these accounts in this for 3 years. So that what we teach them, post a journal, and the debit side on the left. When we post debit and credit side of cash flow into ledger, we change the side, right? We change the side. Something written in sales account on the debit side of the cash book goes to the sales account on which side? And they say, no, our system is, we have changed the side of the debit. All debits will go on the debit and all credits will go on the credit. We have a left hand drive in India, and in America it is a right hand drive, and it is not that more accidents take place there and less accidents take place. System is working there for years. So this system of day book, then of course somebody objected to it. I said, okay, you don't use debit, you say payment and receipt side. Payment side on the right hand side is okay, and receipt side on the left side is okay. So posting into the day book or receipts and payment book, whatever it is, then it is posted into ledger, and the students pick up in a wonderful way, conceptually correct, and they reach the same trial balance as from approach 1 and 2. These have been the areas of my interest. So today you are here. Perhaps you have been told also. I am going to talk in this session about the changes in the Companies Act 203. Before that it was Companies Act? Yes, 195. Remember? But I will talk about only changes relevant to us as teachers of accountancy from class 12. तो इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीज करें. Anyhow, wherever it is possible, I will refer, give a running reference, and then leave it to you to study further. But there are some minor changes, just as I once referred to right now. Section 78 has become 70. ऐसी बातें आई. Section 78 has become 52. Have you done it? Then we have Section 79. You know what it was? It was shares issued at discount. Conditions on which these shares are to be issued at discount. Now it is Section 53, which bans the issue of shares at discount. That's one marker. One marker will come definitely on this. What does Section 52 deal with? What does Section 53 say? Important, most important decision taken, that no issue of shares at discount now. Absolutely no issue of shares of discount. These are the minor things, minor changes. Another change is regarding interest on calls and arrears and calls in advance. It has been doubled. Calls in arrears and calls in the sheets at the end. Almost the table F of the article of association given in the Companies Act. It is at a later stage. You just listen to me, please. Interest rate is doubled. Calls in arrears, the company receives from them interest on arrears. It used to how much? But you don't have to say 5. Let them say it is 10%. It is 10%. And calls in advance, it is 12%. It has been doubled. So these were the minor changes. Now I come to the major ones, which will require some time. This is redemption of debenture redemption reserve. Debenture redemption reserve. Now,
The debentures are issued by the company to raise long-term funds. To raise long-term funds. And on the expiry of the term, the money is refunded. What is the source of this money which is paid back to the debenture holders? Source of these funds. You borrow from the public. You borrow it, put the money in the envelopes and put it in the locker. This is not the purpose for it. And the same money is paid back. This is bullish. This money is invested. Invested in such a way that there is a return. And if the money is returned out of the profits, that is the best source. That is the best source. But there are so many claimants for the profit. When there is profit, shareholders also feel happy that some dividend will come to us. Or there is management, it may take decision that some part of the profit be brought back for expansion and other things. So, best source of refund or repayment of debenture, the best source is profits. We have to ensure that we make payment to the debenture holders out of the profits. And the payment is to be made from cash, and cash is on the asset side, and profits are written on the liability side. 99% ne kiya. The correct answer was both. It is both an asset. ये बात पक्की तरह सुन। देखना है किसी ने मुझे पूछते हैं, तब भी पूछते थे, अब पूछते हैं। Reference जी, what is the source of your information? I got William Pickles. Study William Pickles. The Gita on accountancy, Bible on accountancy. William Pickles. That's what I refer to whenever I have a doubt. And it goes. Now, when we sell our stock is on the asset side. Say yes. Yes. Stock is on the asset side. We sell a stock worth 1,000 for 1,500. So stock is replaced by 1,500 cash. It includes profit. ये बात समझो. And profit is first an asset. It becomes a liability only on 31st of March. 365 days ताले में रखते हैं उसको. ठीक है? So अगर ये नहीं समझ आएगी तो my dear colleagues, teachers, ये नहीं पता लग सकता कि profit में से कैसे करो. We have a profit on the asset side, and we have a profit on the liability side also. Earlier used to profit and loss account, now yes, statement of. We say, some people say surplus, some say balance, it's one the same. So that is there on the liability side, fine, accept it. From there we will create a reserve on the liability side, reduce that surplus, and we have a reserve. And on the asset side we have the same profit. उसमें से थोड़ा पैसे उठा के इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे समझाना होता है. So therefore, in this DRR, Debenture Redemption Reserve, there is थोड़ी सी technical, but I try to make it interesting. This is subsection 4 of section 71. Main section is 71. इसको refer करना. Yes, it is there. Main section is 71. This section 71, पढ़ के देखो जरा. Prescribes that a company
इशूइंग डिवेंचर, जिसने डिसाइड कर लिया कि डिवेंचर इशू करने, ये डिसाइड कर लिया कि डिवेंचर इशू करने, इशूइंग तो ये साथ की साथ ही फैसला हो गया कि डीआरआर भी करना है। लायबिलिटी साइड में जो सरप्लस पड़ा हुआ है उसमें से बना। द कंपनी इशूइंग शेयर्स, इशूइंग डिवेंचर्स, उसने डीआरआर बनाना है। तो जब बनाने हैं तो पहले ये सोचेंगे ना कंपनी प्रॉफिट है नहीं, If not profits of the current year, they be out of, इसी बात है, प्रॉफिट होने चाहिए, प्रॉफिट के बगैर गुजारा नहीं। Am I right? So ये पहला पढ़ लीजिए आप, आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, डिविजिबल प्रॉफिट्स, सब कुछ काट के गवर्नमेंट का हिस्सा दे के, टैक्स दे के जो बचे उस प्रॉफिट में से देने। The amount credited to DRR shall not be used except for, so no DRR is required for, ये नोट कर लो, no DRR is required for debentures issued by AIFI, बस ये है, regulated by RBI and banking companies. So no DRR is required for debentures issued by All India financial institutions regulated by RBI and banking companies for both, ये both आ गए ना, public issue and, हाँ ये both, कौन सी ये ऊपर वाली दो। For other financial institutions, DRR will be as applicable to non-banking finance companies. वो non-banking finance company के लिए नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। चिट फंड जो है ना, चिट फंड जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, DRR will be 25% of the value of debentures issued through public issue and no DRR on debentures issued for, यानी डिफरेंस आ गया इतना थोड़ा सा, 1 मार्कर है, पेपर सेट करो, बता दो कि ये पूछना है, अपने आप रखेंगे। आप 5, 7, 8 नंबर के आते हैं 1 मार्कर और ये होते हैं 1 मार्क, और इस बार तो नई चेंज आएगा, इसमें तो वो करेंगे जरूर। देन फॉर ऑल अदर कंपनी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड, पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए लिख दिया, अदरवाइज फॉर ऑल अदर कंपनीज कर दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। आई थिंक पिछला कंफ्यूजन दूर करने के लिए, यस, for all other companies including manufacturing and infrastructure companies, DRR will be 25% of the value of the debenture issued. It is value of the debentures issued, ठीक है। Then C, next, every company which is required to, this is rule C, and DRR shall on or before 30th of April in each year invest or deposit a sum not less than, तो देखो ये 2 आ गए रादर, अब आप भी ख्याल रखना, हम भी देखते रहेंगे, ये 2 तो है एक्ट में, 25 and 15, 25 and 15, 25% year, okay? That is on the liability side from surplus statement of, उसमें से निकाल कर दिया। You mean to say from the last year surplus now? आप समझे? ये एक अवेयरनेस है हमको, इंडस्ट्री को, कि आपके पास जीरो नहीं होने चाहिए पैसे, पैसे होने चाहिए इन सम। अच्छा एक और चीज आगे यही खत्म नहीं है बात, not less than 15 on the 15 of the amount the debentures are maturing during the year. अगर debentures mature 1000 के होने हैं during the year, any time during the year, so it is 15% of that amount. 15% of that. 15% of, at no time it should fall below 15%. आपने रिडीम कर दिया 31st of दिसंबर को,
रिडीम कर दिए, वो पैसा यूज कर लिया, उसमें जीरो हो गया, ठीक है। देन इट इज द टोटल अमाउंट of the debentures. Some were maturing on 31st, some were maturing on 31st of January, others on 15th of February, and so on. It is the total amount that is concerned. Okay, so that's fine, I think. Maturing during the year ending 31st March of the next year. Next year is the same, 14 and 15, right? Now ये है पैसा कहाँ जमा कराना है। एक है बड़ा आसान काम, और आप बच्चों को वही कह दो, फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट कहीं गिरवी नहीं रखना, उसके अगेंस्ट कोई लोन ना ले लिया हो, ये भी लिख दिया है इसके अंदर, अंडरलाइन कर लो। फिक्स डिपॉजिट इन एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज फॉर GN, clear, so that on the date of redemption this money is there. Next is in unencumbered. Unencumbered is also free from any charge and clear. Another word for the same, but not with the bank. Securities, other securities of the central bank. ये मैंने दो लिखे हैं, एक दो और भी हैं इसमें, but these two are to my mind something which should be on our tips. The amount invested shall not be used for any other purpose except for the redemption of the debentures. मशीन की जरूरत पड़ गई, चलो इसी पैसे से खरीद लेते हैं, नहीं करना ये काम। एंड ये है रूल्स, नो, दीज आर रूल्स। मैंने पढ़ा है सेक्टर, इनकी इन्फ्रिंजमेंट पनिशेबल वेरी सीवियरली। कोई ये समझे कि सेक्शन नहीं है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नहीं है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ, दे आर पनिशेबल, द इन्फ्रिंजमेंट टू द रूल्स इज पनिशेबल एज सीवियरली एज एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द कंपनी। तो रूल्स को कोई घटिया नहीं मानना किसी ने, ओके। देन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन दोनों को टिक कर लो। थर्ड इज दिस अमाउंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर any other purpose except for redemption. हाँ, ये है next page का, ये भी और important. Anyhow, so that is the security. If a debenture is going to be converted into share capital, वो तो फिर ठीक है, होगी security. So then is only required for non-convertible portion. ये one marker है. DRR is required only for non-convertible portion. ठीक है? Then it must be ensured that the amount remaining invested shall not be at any time fall below 15% of the face value of the debentures maturing during the year ending March 31 of the year. The amount credited to DRR shall not be used for by the company except for redemption of debentures. अच्छा, ये next है interest on calls in arrears. I have already told you. Number of partners. कितने थे? 12 हैं। क्या था वो भूल जाओ। Again, Act says Act. Now, Partnership Act is silent on this. Partnership Act only says 2 or more. Partnership Act कहता है 2 or more. उसने कोई अपर लिमिट लगाई। अपर लिमिट हैज बीन पुट बाय द कंपनीज एक्ट। पहले 19 वाले ने लगाई थी, वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी वाली है ना, वो भूल जाइए, अब खत्म कर दिया। सबके लिए 100 एक्ट 2013, उसके अंदर रूल बनाए, रूल 10। दिस इज रूल 10। एक्ट का सेक्शन है 464, ये याद रखना है। 464 says 100 and rule 10 of the company's miscellaneous rules
किताब पढ़ो ना कंपनीज एक्ट की, उसमें मिसलेनियस रूल्स के बाद और कोई रूल है ही, लास्ट में ये दिए हुए, और उसके अंदर लास्ट रूल है ये। तो रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 214 पुट्स द लिमिट एट 50। ये कुछ भी अगर गलत लिखा हुआ है तो मेक इट, मेरे पास 10 लिखे हुए थे, आपके पास शायद 100 वाला था, लेकिन एक्चुअली ये है 50। प्लीज मेक ए करेक्शन बोल्डली। नो मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी शुड बी, number of members should in private company should be minimum 2 and maximum another change 1 marker है सारे। आप देखना है कि ये क्वेश्चन पेपर कितना इनसे आएगा, भरा हुआ होगा। 2 or more members holding shares jointly, हस्बैंड वाइफ के नाम शेयर है तो 2 मेंबर नहीं गिने जाएंगे। 1 In case of a public limited company, the minimum number is 7, no upper limit. अच्छा, ये है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप सब जानते हैं व्हाट इज कारपोरेट, बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। तो नाउ द एक्ट हैज पुट the minimum limit of 2% of the average profit of last 3 years, preceding 3 years, उनका एवरेज प्रॉफिट उसका 2% मिनिमम। कोई ज्यादा करना चाहे तो ओके, बट दिस मस्ट बी देयर, ओके। एंड द नेक्स्ट इज दिस वुड बी द लास्ट अटेम्प्ट, बिकॉज आई हैव मेनी थिंग्स टू से, लेकिन आपको बताया था कि टाइम नहीं है। सेल ऑफ फोरफीटेड शेयर, इधर देखो सब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सिलेबस पढ़ा आपने, रेज हैंड्स? हाँ करो ना, सबने पढ़ा ना सिलेबस। उसमें कैपिटल रिजर्व कहीं नहीं लिखा हुआ, स्टिल वी पास द एंट्री शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू, और उसका एक नंबर भी लिखा हुआ नहीं, इट इज इम्प्लाइड। ठीक है, अब ये देखो, द एक्ट आर्टिकल 3 ऑफ द टेबल एफ प्रिस्क्राइब्स दैट द फोरफीटेड शेयर्स मे बी सोल्ड, इशूड नहीं लिखा। इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ये जो करते हैं हमने इशू, ये वर्ड ही करता है। दिस इज रीसेल प्रैक्टिकली, all disposed of by the board of directors। ठीक है ना, हम करते हैं, कैपिटल रिजर्व भी करते हैं इसी के अंदर। एक चीज और आएगा, मैंने तो पहली बार देखी है ये, कि बोर्ड फोरफीचर को कैंसिल भी कर सकता है। नेक्स्ट एंट्री, व्हाई वाज इट कैंसल्ड? बिकॉज लोग पैसे देने को तैयार है, लोग पैसे देने को तैयार है। देखिए, हमारे से कॉज एंड एरियर ले लो। अब जब इसने आपने सेकंड रिवर्स एंट्री बनाई तो कॉज एंड एरियर फिर डेबिट हो गए। कॉज एंड एरियर हैव बीन डेबिटेड, नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस। ओके, देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी नॉट टू बी लेस देन 5%। पहले कितनी होती थी? आई थिंक इट वाज 25%। doubtful, whatever it is, but now it is 5%. 5% is 5%. It was earlier 5%, now it's also 5%. Anyhow, it was there in my mind. Application money not to be less than 5% of the face value of the shares, and if application money is not fully received up to the due date, ये एक नई चीज है, up to the due date, it will be refunded within 15 days. It has to be refunded within 15 days from the closure of the issue. Otherwise, interest at the rate of 15% will be paid. अच्छा भाई, यहाँ फिर I have to wind it up. एक ये एरिया है ESOPs का, ये नया कोर्स में ऐड हुआ है। इसकी 2 चीजें आपने सीखनी है। एक तो व्हाट इट इज, वो तो बड़ी सिंपल बात है। The employees, even directors,
they get shares of the company at a very, very less price. Okay? और ये कटिंग है मेरे पास. Have you heard of this snap? क्या कहते हैं इसको? स्नैपडील सुना है आपने? हाथ खड़े करो. हाँ, वेरी गुड. ये ई कॉमर्स का साइट है ना, ये कटिंग है. उसके पास 4000 एम्प्लॉई थे. पिछले साल 1200 थे. 1200 out of 4000, 1200 employees got ESOPs. बात खुशी की है ना उनके लिए. Why do they give it? To retain the talent. छोड़ के ना जाए. इसका जो सिस्टम है ना देने का, वो समझना बहुत जरूरी है. तो मैं उसमें पहली बात तो यही है, बाकी आप पढ़ लेना कि these are the shares given by the big company and who started in India? Infosys started it in India. और कहते हैं कि वहां का पीएनबी करोड़पति है. इतने शेयर इकट्ठे हो गए और बड़े सस्ते देते हैं. और फिर आप कईयों ने तो जस्टिफाई किया है कि रूल ठीक है, होने चाहिए. और ये रूल कब से लागू हुए हैं? 15 मई से, कल से. अब यहां पर ये रूल बने हैं और वो जो रूल लागू कर दिए ईएसओपी पर. ईएसओपी कैसे चलता है ये देखिएगा. Company decides to grant 5 shares to everybody. Grant करते हैं, date है. Then this date is vesting date. ये vesting date है और this is called vesting period. During this period, the shareholders have to apply, give their consent, what they think, do they want to buy, purchase नहीं करने, सिर्फ उन्होंने apply application देनी है, कि लिख के एक letter देना, I accept it, I have been offered 5 shares, I accept all the 5. Some people may be offered 5,000 shares. I accept all the 5. Say the company wants them to pay 1,000 rupees per share. 1,000 rupees per share. अगर किसी को 5,000 मिल गए तो 50 lakhs हो गए. Maybe some people don't have 50 lakhs. They may accept less. ठीक है ना? Particularly people belonging to lower strata, they may not have money. So this is vesting period. During this they have. Now it may be 3 months, 2 months, whatever it is decided by the board. Then ये है, इसे कहते हैं exercise period. ये exercise period है. यहां उन्होंने परचेज करने हैं. Purchase the shares. ठीक है. इसके बाद अगर किसी ने कंसेंट नहीं दी, he will not get the shares. 100 शेयर मिले हैं, 100 ले लिए, ठीक है. कुछ नहीं लिखा, कैंसिल. Got it?
नाउ कम दिस एंड ये जो कल की मुसीबत खड़ी हुई है, क्या करते थे लोग कि इस डेट को उन्होंने अप्लाई करना, अगर उनको पहले पता था कि हमें शेयर मिल रहा है 1000 का, मार्केट प्राइस, इसकी मार्केट प्राइस इज 4000, इनको 1000 का मिल रहा है, कोई नहीं खरीदता, बिकॉज देयर मनी इज इन देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, राइट नाउ द मार्केट प्राइस ऑन दिस डेट इज 4000। दे कैन बाय द शेयर, यहां खरीद रहे हैं कहीं और वो नोट कर रहे हैं 4000, 4200, 300, 400, 500, 600, 5000 वेट कर रहे हैं, एंड दीज पीपल आर इनसाइडर्स। अंदर बैठे हैं, ये पॉइंट पकड़ लिया। अच्छा, अंदर बैठे हो ना तो पता है तुम्हें सब कुछ, तुम्हारी कंपनी में क्या फैसले होने वाले हैं। इवन डायरेक्टर्स हैव गॉट दी कंप्लायंस, वो भी है उनके पास भी, उनको तो सब पता होता है, फैसले तो उन्होंने लेने सारे। इनसाइडर हो गए और ये पकड़े गए। ये है बैकग्राउंड, जब आपको पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आएगा। ये लोग क्या करते थे कि यहाँ आके यहाँ खरीदे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जबकि प्राइस 4000 से 6000 हो गई, यहाँ खरीदे और बेच दिए। कई बार ऐसे भी मान लो चला आने, मेरे पास पैसे नहीं रहा, पैसे आप दे दो मुझे, मैं खरीदता हूँ। उसी वक्त ले लेते तो 4000। So they save their money. Their money is earning interest in the bank. उनका अपना पैसा इंटरेस्ट कमा रहा है, अपने पास खरीद के रख ले तो क्या होगा, इंटरेस्ट बंद, शेयर आ गया अपने पास, शेयर की कीमत बढ़ रही है, लॉस क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सो अपना पैसा तो बचा के रखा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है 8-9%, और ये प्राइस जो है ये बढ़ रही है। अब उन्होंने बंद कर दिया, एक रूल बताना बस, क्या किया है उन्होंने कहा है, एक वर्ड यूज किया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स। सब कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट्स देती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर एंड्स ऑन which date? June 30. Ends on June 30, but their report does not come on June 30. रिपोर्ट कब आती होगी? जुलाई 15, 20, 30, पूरे जुलाई में बीत जाता, अगस्त में आता। So 6 months before the quarterly results, 6 months before the quarterly results, वो सेल परचेज नहीं कर सकते। 6 months before the quarterly results are announced. Let me take, results are announced on 31st of July. तो जुलाई से 6 महीने पहले, 6 महीने हो गए फरवरी तक, राइट। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन और है, 45 days before the report of the quarterly report. Window is closed. The word window has been used for this. The window is shut down for purchase and sale. एक तो वो 45 days और एक 6 months, अगर टोटल लगाएं तो ये 7.5 months प्लस रिपोर्ट आने के बाद 48 आवर्स की एक और रिस्ट्रिक्शन है। रिपोर्ट आने के बाद भी 48 आवर्स, तो 3 रिस्ट्रिक्शंस विच दीज रूल्स, ये जो कल के परसों से हुआ, कल से लागू है, एंड पीपल आर अप अगेंस्ट दीज रूल्स कि ये इनसाइडर ट्रेनिंग में हम नहीं आते। और एक बात समझ नहीं आती, मैं ही फैसला करने वाला,
मेरे पास ही एम्प्लॉय स्टॉक है, तो मुझे तो पहले ही पता है, मुझे तो सब कुछ पता है, ठीक है। वी आर 24 आवर्स इन द नो ऑफ व्हाट इज गोइंग इन द कंपनी। या तो हमें एम्प्लॉयज स्टॉक देना ही बंद कर दो, और देते हो तो ये तो हमारी पावर ऑफ डायरेक्टर्स तो रहेगी टू टेक डिसीजन, हाउ कैन यू टेक इट बैक। सो देयर इज सो मच डिस्कशन गोइंग ऑन, लेट अस सी what happens, but you have to remember only one thing, three things. One is this: grant date, vesting period, and exit. Vesting period is purely an application period where they have to give their consent कि कितना खरीदना, खरीदते नहीं है, पैसे नहीं देते, ठीक है। फ्री जर्नल एंट्री होल्ड, इनको समझ लो आप, फिर किसी तरह का इस पर कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एंट्री बनती है ग्रांट डेट पर, जब ग्रांट करते हैं एक एंट्री उस पर, एक एंट्री बनती है जब उन्होंने इंटेंशन दे दी कि हमने खरीदे, और एक एंट्री बनती है एक्सरसाइज पर। दो रेट होते हैं, एक मार्केट रेट होता है, रादर तीन, एक फेस वैल्यू, एक मार्केट रेट, और एक और नोट कर रहे हो एक्सरसाइज रेट। मार्केट रेट, फेस वैल्यू, एक्सरसाइज रेट, तीन एंट्रीज इसकी बनती है। vested interest वही है, this power has been vested in me, power has been vested in the employees, so that is important, okay। so ये तीन ये एंट्रीज रिलेशन अपने आप बना देना है, और ये है, that's all। मुझे थोड़ा ब्रीफ करना पड़ा, so many other things I want to say, but that is one project which I wanted to discuss with you in accountancy. That was on comparative study of cash flow statements. That I have developed myself. Earlier I was of the view that we have 4 tools of analysis in our course. 4 tools of analysis. Tools are used to make a product. We don't make a project on the tools. Project on the tools is rubbish. Tools were used to make this table. A cutter was used to cut the wood. A plane, a file was used to. So these tools are used in the workshop to make a product. This is what is meant when part B. Tools were introduced. They were introduced that the students should be trained to make use of the tools to create something. वो होता है प्रोजेक्ट। फिर एक कल के न्यूज़पेपर में एक कटिंग मिली मुझे, एक पेज, दैट वाज पेज इकोनॉमिक टाइम्स, पेज 11। ये है, इसकी एक फोटोकॉपी आपको मिलेगी। दिस इज देयर इन यस्टरडेज इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स आर यूज्ड वेरी ऑफन। सो ये है ए सोर्स मटेरियल फॉर ए प्रोजेक्ट। इस पर प्रोजेक्ट बनता है और 4-5 दिन में बन जाएगा, फर्स्ट क्लास। एंड यू विल सी हाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज एन ऑथेंटिक सोर्स मटेरियल टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू। This is Aditya Birla Nigho, and CBSE co-opted me as a member of their committee for developing guidelines। CBSE पब्लिश कर रही है, सब ने गाइडलाइन की एक कॉपी ले लेनी है। उसमें भी मैंने एक ये बनाया, लेकिन ये आदित्य नुबा उसमें पुराना वाला है, ये आदित्य नुबा कल का है। उसमें जो है वो 1 साल 6 साल पहले वाला, कि जब बना रहे थे हम उसी दिन आया, तो मैंने कहा ये ले लो, उस पर बन सकती है, इस पर बन सकती है। और क्या करना क्या है,
देखिए 2 पीरियड दिए हुए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है 4 खानों वाली, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्वार्टर ले लो आप, ये करवाओ ना उनसे। सो दिस कैन बी डन एज ए होमवर्क, और आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर जेन्युइन मिल जाए ना कटिंग, ये कटिंग प्रोजेक्ट की फाइल में लगी हो, तो उसका फिर मजा ही कुछ और होता है कि देखने वाला कहता है कि यस। सो दिस कम्स, इसका कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, देखिए सेल बड़ी है, प्रॉफिट बड़ा है या क्या है। ये लिखा हो EBITDA, ये क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन। अमॉर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन होती है, पर होती है गुडविल पर या पेटेंट्स पर, ठीक है। सो ये है। उसके बाद नेट प्रॉफिट है, बस 2 को कंपेयर कर दो, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ, और इसकी रूपरेखा कैसी होगी वो अभी आप देखोगे जब हम प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे। नहीं हो, देखिए नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सब में ऐसे है, किसी में 9 पॉइंट बनेंगे, किसी में 8 बनेंगे। सो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, इवन अगर आदित्य नोवा का भी बनाना है ना, सो दैट विल बी दी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आदित्य नोवा इन द लास्ट क्वार्टर। बस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आदित्य नोवा इन द लास्ट क्वार्टर, बस ये हेडिंग बन गया उसका। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव? Objective to know whether revenue has improved, whether profit has improved or gone down. That's it. So period of study, in that case it will be quarter, but in this case, in this project, इसमें भी period of study जरूर लिखना है. Got it? Then we have about the company. हाँ, this is important because students must write something about the company whose cash flow statements you are going to analyze. Tell them to go to Google. तो अब देखना, so about the company जरूर लिखना, 1 page or 2 pages enough. और ये encourage करो कि they should write in own handwriting rather than typing it. So limit yourself within the parameters, and when you are stating your objectives, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव भी केयरफुली लिखनी है कि क्या करना है। ऐसे ही लोग मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, अरे तारे कौन सा तोड़ के लाऊं? नहीं ला सकते, लेकिन ये अचीवेबल प्रोजेक्ट यहाँ नोट कर लो, ओनली अचीवेबल, वो भी लिखवाने, 1 भी काफी है, 2 भी काफी है। दे आर एक्सपोज टू दिस थिंग ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। उनका अगर इंटरेस्ट पैदा कर दोगे तो बच्चे एंजॉय करेंगे। सो सोर्स मटेरियल, ये सोर्स मटेरियल है जो आपको दिया, ये सोर्स मटेरियल जिसके ऊपर आपने काम करना है वो सोर्स मटेरियल है। इसके ऊपर आपने टूल्स यूज करने हैं, 4 टूल, और भी टूल्स हैं, रेशो बड़ी थोड़ी हैं आपके कोर्स में, रेशोज का अंत कोई नहीं है, बट देन यू हैव टू यूज ओनली दोज रेशोज which are permitted in the syllabus as well as for the projects. Projects में थोड़ी सी ज़्यादा है ना, projects में थोड़ी सी वो भी यूज कर लो, no problem. It's really जरूरत के वो जरूर करनी है, nothing. Whatever is permissible or admissible, possible, वो यूज करनी है. Then after this is there, it is to be pasted. Then comes processing. इसको कैसे करना है, इस पर काम कैसे करना है, उसके लिए प्रोसेसिंग शीट्स बनती हैं। वो 1 दिन में 1 या 2 दिन में 1 कैसे बच्चे बनाते हैं। गिव देम टाइम 4-5 days. योर रोल इज ओनली ऑफ ए गाइड, काम सारा बच्चों से करवाओ। सो देन लास्ट ऑफ ऑल इज कंक्लूजन। लेट्स सी दिस नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एनालिसिस ऑफ कैश फ्लोज ऑफ अजंता आर्ट्स लिमिटेड फॉर 4 years। आप 5 की ले लो, 6 की ले लो, और कैश फ्लो पूरी नहीं लेनी, सुनो, 3 एक्टिविटीज है, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्लो फ्रॉम और 2 ओपनिंग, सॉरी 1 ओपनिंग 1 क्लोज, ठीक है। तो 4 साल की 5 साल की ले। फिर जो कैश फ्लो, अच्छा कैश फ्लो पढ़ाने से पहले नहीं कर सकते ये, पहले कैश फ्लो सिखाओ बच्चों को, फिर ये होगा। इतना इंटरेस्टिंग बना है ना ये, आप आई एम श्योर, मेरे तो कंस्टेंट होते हैं, कई बार ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आप अगर सोच सोच के कुछ और इसमें एंगल जोड़ोगे
Please tell me. That will add to my information. Then we have next is objectives. ये 3 लिखे हैं, बेशक 1 लिखो. Objective is to observe how the operating financing inflows have been used. पैसा आता है ऑपरेटिंग से, पैसा आता है फाइनेंसिंग से. How this money is used? इन दोनों में से बेटर कौन सी है? ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग से पैसा आना जो बेटर है rather than किसी से मांगना. You see, फाइनेंसिंग, फाइनेंस मैनेजर के काम होते हैं टू रेज फाइनेंस, फाइनेंस इकट्ठी करना, पैसे इकट्ठे करना. ये फाइनेंस मैनेजर का काम है. कौन कौन सी सोर्सेज से करनी है, लॉन्ग टर्म से कितने करनी है, फिर लॉन्ग टर्म के फिर आगे कौन कौन से हैं, डिबेंचर से कितने करने हैं, बॉन्ड से कितने करने हैं, शॉर्ट टर्म अगर है तो वो ही. फिर दूसरा होता है उसको इन्वेस्ट करना. तो इसमें यह है कि फाइनेंसिंग से इनफ्लो और ऑपरेटिंग से इनफ्लो, ये तो पता लग जाएगा हमें कि इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत कम, मैंने तो देखी भी नहीं है किसी की नेगेटिव आई हो, आउटफ्लो आती है. लॉस हो जाए, कंटिन्यूसली लॉस ही होते रहे तो फिर तो हो सकती है नेगेटिव, अदरवाइज ये तो पॉजिटिव ही होती है. am I right? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग. लेकिन कोई ये नहीं है ब्लाइंडली कह दूं मैं कि कभी भी नहीं होगी, होगी क्यों नहीं. अगर कंपनी गोइंग डाउन द हिल तो हो सकती है. टू नो द यूजेस ऑफ फंड्स, दैट इज हाउ द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज. फिक्स्ड एसेट्स मस्ट बी परचेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज. फिक्स्ड एसेट्स कभी शॉर्ट टर्म से नहीं. मशीन खरीद ली शॉर्ट टर्म लोन से, अरे अभी वो यूज करनी भी नहीं शुरू करी, लोग पैसा मांगने आए, वापस करो. कैसे वापस करो? बेच दो. यही काम करना है. सो इस तरह से फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल दोनों को कह देते हैं. बेस्ट सोर्स फॉर वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल यू नो डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं. एंड देन द gestation पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी ख्याल में रखना है कि आज प्रोडक्शन शुरू कर दिए, आप बनाते हैं विंटर गारमेंट्स, और प्रोडक्शन भी अगर विंटर में शुरू करते हो तो वो प्रोडक्शन का gestation पीरियड भी देखना, उधर से विंटर खत्म हो गया और आपकी बिकेगी कब, तो बना दी पहले है. तो इफ यू टेक 6 months टू कंप्लीट द एंटायर प्रोडक्शन लाइन, एंड यू शुड स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जून, मई और जून. अगर शॉर्ट टर्म का लोन लेके वर्किंग कैपिटल से शुरू कर दिया तो बाय द एंड ऑफ अगस्त लोग पैसा मांगने आ जाएंगे, सितंबर. तो फिर तो उनको कह दिए स्वेटर ले जाओ और बनाने ले जाओ, और नहीं मिलेगा नहीं. सो वर्किंग कैपिटल की सोर्स कितना पैसा आप, ये इसीलिए बता रहे हैं कि ये भी एनालाइज करना है. आप देखेंगे कि ये इनफ्लो कहाँ कहाँ यूज की है, किसमें यूज की है, ये जस्टिफाई करना. एक एक पॉइंट लिख दे बच्चा तो वही समझो कि उसे कंसेप्ट पता लग गया. सिर्फ वो ये नहीं जानता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनानी, उसका बैलेंस निकालना और काम खत्म. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यही है, एप्लीकेशन का यही है मतलब. सो इफ द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन सोल्ड, चलिए कभी कभी पुराना हो जाए. कैन एनीबॉडी टेल मी, सब बता, पैसा क्या करना चाहिए? फिक्स्ड बेचने से जो पैसा आए उसका क्या करना चाहिए? दूसरी मशीन खरीद लो, दूसरी मशीन खरीद लो. दूसरा, जिस लोन से पैसा ली मशीन खरीदी थी, मेरे तो समझ में 2 ही आते हैं. गॉट इट? सो ये देखना है आपने कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है. 12th क्लास में हमें बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रोक कर, आप 5 ले लेते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट. अगर कोई चीज अपने पास से भी बीच में ऐड करनी पड़े
जिसका इफेक्ट आपको तो पता है, बच्चों को नहीं पता। आप ऐड कर दो 2-3 बातें उसमें, आप 2-4 बातें और ऐड कर दो, उसके बाद बच्चों से पूछो, नहीं आती तो ठीक है हम बताते हैं, ये है इसका मतलब। वो डिसीजन ठीक था या गलत था, आपने कह दिया ये मशीन बेच के व्हाट हैपेंड, वो किसी होटल में जाके खाना खाया, हो गया ना कल्याण। पीरियड ऑफ स्टडीज, ये चारों की डेटें लिखी हुई हैं, राइट। अबाउट द कंपनी, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, सेगमेंट्स जानते हो, सेगमेंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। मारुति की 16 है, नेम्स ऑफ द कार्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, कौन सी सेगमेंट अच्छी जा रही है, सबसे अच्छी कौन सी जा रही है, किसी को बंद कर देते हैं, किसी को इम्प्रूव करते हैं। अब सब कारों वाले जो है ना ऑटोमेटिक बनानी शुरू कर दी उन्होंने, कोई ना कोई चीज ऐड कर देते हैं। सम फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी, अबाउट द कंपनी एक पेज बनाना है, तो बच्चों का काम है, आपने उनको कहना बनाएंगे, बनाएगा। टूल्स ऑफ एनालिसिस, एक ही टूल है वो कैश फ्लो का है। नाउ हियर आर दी पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स, ये आप देखो ये 3 पेजेस हैं पैरामीटर्स के, तीनों में ही पैरामीटर लिखा हुआ नेक्स्ट 3, ये 3 हैं वही ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग की जो सोर्सेज हैं किस किस काम आती हैं, ये वो है पैरामीटर्स। इन पर आपने उनको टेस्ट करना है, क्या उन्होंने ये काम किया। अगर कोई चीज नहीं गिवन, सो दिस आई एम रिपीटिंग, कि आप उसमें 2 चीजें जोड़ दो, बीच में नीचे लिखवा दो उनको, और फिर उसी पर वो प्रोजेक्ट, कम से कम जो आपने वेबसाइट से ली हुई है वो तो जेन्युइन है, उसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर दिए, इसलिए कि यू वांट, मेन पर्पस हमारा बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, कंसेप्ट क्लियर करना। ओके, सो देन वी हैव रीपेमेंट ऑफ लोन, बिल्कुल ठीक है, रिजर्व बनाओ, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हायर गुडविल, खैर जैसे बनेगी आएगा तो उसका इफेक्ट ये होगा, गुडविल इंप्रूव होगी। It's not in a way used for that, but it is automatically used when profits are increasing and increasing and increasing. Then second is cash flow from investing activity, inflows and outflows, sale of investments, fixed assets, interest income, dividend income, कुछ और है, कुछ और ऐड कर दो, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए वो उसमें। Outflows, purchase of investment or fixed assets, anything else? Investing होनी चाहिए। Then you know about financial and non-financial companies, उसका भी ध्यान रखना है। Then last parameter is cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities. Inflows, issue of shares, debenture, bonds, long-term loans, outflows, debenture repayment, loans repayment, payment of dividend, and payment of interest, और कुछ ऐड कर लो, ठीक है। अब आपने देखना है, जैसे आपके पास सोर्स मटेरियल है, वो जो चेंजेस आई हैं वो कहाँ के लिए हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। Source material, operating, investing, financing, cash flows, along with the opening and closing balances of cash and cash equivalents, have been picked up from the site of the company. ठीक है, ये आगे देखो, ये 4 साल के हैं, और ओपनिंग बैलेंस से पहले ओपनिंग बैलेंस, देन क्लोजिंग बैलेंस आ गया। Now this closing is the closing balance 51,000,
ये ओपनिंग बन गया नेक्स्ट ईयर, सेम साइकिल चलता रहेगा। नाउ आई हैव कैश बैलेंस, नीचे का कैश बैलेंस देखो, कैश सोचो तो ये 51,000 इट रन्स इनटू करोर्स, 51,000 करोड़ और 81,000 करोड़ कैश रखा हुआ है, दिमाग खराब है नहीं? इतना कैश किस लिए चाहिए? कैश हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए है। कुछ दिमाग में आती ना बात, ये कुछ कहीं गड़बड़ है, ये गलत काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर कितना कैश हो गया? ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लिखनी और बच्चों को समझ आ जाए, नथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट गोइंग टू टर्न माय स्टूडेंट्स टू फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, नहीं कर रहे। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे काम करेंगे ना वो कमाल की। Now what we have to do, this is given, come to the next page, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पकड़ो, देखो ये है, अच्छी तरह बता दो उनको। इट सीम्स दैट लॉट ऑफ मनी हैज बीन लॉक्ड इन कैश एंड कैश, बिल्कुल ठीक है। कितनी लॉक की हुई है ये देखो, लॉकअप 51, 81,000 है लॉकअप। आगे जहां किसी ने डांट लगाई होगी, 12 में अकल आ गई, 13 में फिर अकल आ गई। एक बात तो ये लिखनी है नहीं? ये हुई ना एप्लीकेशन। दो बैलेंस शीट में कैश फ्लो बना दो, क्या है? अरे बच्चे कुछ सीख के जाएंगे, आपके गुण गाएंगे। This can be used for expansion after keeping some money for working capital requirement. Expansion करो, ऐसे लो, पैसे रखे हुए, क्या करने इतने पैसे? उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बैक, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो 15,000 करोड़, 20, फिर ऑपरेटिंग से इनफ्लो कम हो गई, फिर बढ़ गई। ग्राफ बन सकता है इनका, ग्राफ बन सकता है, बनवाइए, विजुअल अपील आएगी उससे। In 2011, the inflow of cash from operating activities increased by 4,700 crore. This indicates 30% increase over 2001, which is good. लिख देना ऐसे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है कंपैरेटिव वो बनाने के लिए, स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करो इसमें। Then we have 2012 cash inflow from operating activities decreased by 1,588. Outflow हो गई। Anyhow, then this means that the cash inflow decreased by 7.82%. This may be due to decrease in cash, decrease in sales, or higher volume of credit. उधारी बेचे जाओगे तो कैश कहाँ आएगा? ठीक है ना, वो करते हैं ना वर्किंग कैपिटल, कैश में, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल का होता है ना। करंट असेट्स एंड करंट असेट क्या करते हो भैया? हाँ 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 वही, तो डेटर्स बढ़ते जाएंगे तो कैश फ्लो कम होता जाएगा, ठीक है ना। सो ये रीजन लिख देने इसमें। तीसरा में है 2013, द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगेन पिक्ड अप ट्रेमेंडसली. It increased by 6,688 crores, which amounts to 35.74% increase, which is really very good. This may be due to recovery from the debtors. ठीक है, बच्चों को 2-4 पॉइंट बता देने। Recovery from the debtors and more and more cash sales. Over the years from 2010 to 2013, the cash inflow has increased by, in all these years, increased by 9,800 crores, which amounts to 62 point. इतनी इंक्रीज हो गई अपने सारे 4 सालों के अंदर इसमें। अब आया ऑब्जर्वेशन, पहले हर एक पर कमेंट करना है, फिर ऑब्जर्वेशन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर इन्वेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, पहले कौन सी थी पीछे? ऑपरेटिंग। नाउ इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
Investing activities indicate the growth or underline this. Investing activity से कंपनी की growth, expansion होगी तो यहाँ होगी, ज़्यादा मशीन खरीदी जाएगी तो growth होगी. Indicate the growth orientation of the firm. The investment in fixed assets is increasing year after year. देखिए नीचे 11, 12, 13 increase. This is 42%, then 119% increase, then 74.74% increase. The firm is investment minded. कह दिया आपने. Firm is investment minded. कैसे पता लगा? इन्हीं फिगर से है. Maximum increase of 42% occurred in 2011, followed by 2012 when the investment increased by 190%. In 2013, it increased by 74%, 74.74%. This policy of the firm will definitely pay in the long run. The production will increase, sales will also increase, profit will also increase, and all that. Then the observation, next observe financing activities. In 2011, cash inflow from financing increased 5032 crores, 45% over the last year. This was used partly for investment in. Underline कीजिए. Why did I say this? क्योंकि ऊपर देखा ना इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज हो रही है, तो ये पैसा यूज किया होगा. Then next day 2012 there is an outflow of cash of 28,100. This is because the repayment of loan, and it may also be because of payment of dividend, क्योंकि ऑपरेटिंग में काफी पैसा आ रहा है. In 2013 there is a cash inflow of 22,733. It appears that the firm has taken more long-term loans to finance the growth activity. Growth activity means investing. अच्छा आगे देखिए, ये इससे भी अच्छा आप बना सकते हैं. ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4 साल की, और ये इन्वेस्टिंग नीचे चले गई, नेगेटिव है. ठीक है, कलर करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा. और आप कैसे भी दिखाना चाहिए, कोई और विजुअल फील मस्ट बी देयर इन द प्रोजेक्ट फाइल. देन ये फाइनेंसिंग देखिए, पहले 2 साल और तीसरे साल में आउटफ्लो है. और आगे देखिए क्लोजिंग कैश बैलेंस. एक ओपनिंग का भी बना सकते हैं आप. ये क्लोजिंग का, मेरे हिसाब से क्लोजिंग का ज़्यादा ऐसा, बिकॉज आई हैव टू डिसाइड वर्किंग कैपिटल एंड अदर डिटेल, और ऑल्सो टू क्रिटिसाइज व्हाई दे आर कीपिंग सो मच ऑफ कैश इन हैंड. Then we have conclusion. Here है conclusion. It has been noticed that in the year 2010 and 2011, an exceptionally high amount of cash and cash equivalents have been held by the firm. The company took care of this fact and reduced it in the next 2 years. In the year 2012, though it is less than the earlier years, it is still on the higher side. Cash and cash equivalents should be sufficient for working capital needs only. The firm should, well, if it is a trading business में तो कह सकते हैं कोई मशीन नहीं लगानी है, कोई कुछ नहीं लानी, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी है. तो ट्रेडिंग बिजनेस है, बनी बनाई चीजें लानी और बेचनी है. You get my point? There you can have an exception, वो भी लिख सकते हो कि अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस है तो ये भी हो सकता है. This is application, my dear colleagues. This is how I put it and look at it. It should also think, the firm should invest more in fixed assets in the coming year. It should also think of paying back the borrowed money so as to reduce the interest burden. Moreover, it is also desirable in view of the higher cash inflows from operating activities, which is also the best source for working capital. Right? So this project will be completed within 2-3 weeks. और एक अच्छा valuable project in the real terms ये बनाना है.
आपके 40 बच्चों में से अगर 30 भी अच्छे 30-35 भी सीख जाए आप पास। ठीक है? So this is what I read about this project, projects on cash flow. This is something new which has never been done so far. Pardon? Companies Act, sir, Companies Act 13 can be taken for the panel discussion. The Companies Act 2013, can this be taken as a panel discussion topic? कंपनीज एक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। हम बात ओनली वर्ड भी उसमें ऐड नहीं किया जा सकता ना डिलीट किया जा सकता। इट इज ओनली द इंटरप्रिटेशन। उस पर डिस्कशन हो सकती है, कोई किसको कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे इंटरप्रेट करता है। It is possible, I agree to that. So that's fine. You know, Companies Act, if we conduct a panel discussion on, say, Companies Act 2013, say, in next 15 days, so how many would like to come forward to be a member of this panel? So, yeah, next 15 days, is it fine? So, you know, feedback form is coming to you. You please write your name over there. So this topic is there, Companies Act 2013, and for, say, the thing is that this project on shares, initially I introduced it long back, and I promoted this project like anything in India, all over India, and also in other countries where CBSE took me. That was a project on shares in accountancy. But this project now has been hijacked. They say no, it is a business project and it should be in the business studies. And the courses committee in business studies has now put it formally in the syllabus. In business studies, project on stock exchange. So I have now modified that and told everybody that this project will not be there as it is, because in accountancy, when we have a project, we use tools of analysis like ratios, right? Which some business study students do not know. Business students may not be studying accountancy at all. Option है ना एक business study के साथ legal study आजकल ये आ गया,
उनको तो अकाउंटेंसी का पता ही नहीं है. तो how can we use such terms which are in accountancy in a project? So the project of business studies must be on business studies. Project on business studies. That's it. So this project on shares is based on the fact that we have 2 stock exchanges in our country, basically, Bombay Stock Exchange and Nations. Acha. So here is this project on business studies. So these are the parameters. You have got this? है ना? ये नहीं है? चलिए नोट करते जाओ फिर, और तो कुछ आ रहा है नहीं, लेकिन समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं. जो नोट करने वाली चीज है हम कहेंगे आप नोट कर लो. देखिए बिजनेस स्टडीज है. बिजनेस स्टडी में एक है कि अगर आप किसी को, ये बच्चे को बिजनेस स्टडी पढ़ाते हुए ये दिखा दो कि आपको सिखा रहे हैं, इससे आपके पास पैसा है, इंटरेस्ट बन जाएगा. What are they here for? क्या करने आए हैं? रोटी कमानी है. अगर रोटी कमाने का साधन आप नहीं दे पाओगे और कौन देगा? कॉमर्स स्टूडेंट कभी भूखा नहीं मरेगा, पक्की बात है. कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर, कि उनको एग्जाम्पल देनी है कि हाँ ये कुछ हो सकता है. प्रॉफिट कमाना पहला पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग, दैट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. देयर इज मनी इन स्टॉक एक्सचेंज, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. उनको समझाओ, अगर करोड़ों लोग लगे हुए हैं इसके पीछे तो पैसा तो है, ठीक है. ज्यादा अमीर, जल्दी अमीर मरने वाला खराब होगा डेफिनेटली, और पैसा मांग के उधार लेके करेगा वो भी जाएगा, और बिना किसी के कहने पर खरीदेगा, किसी के कहने पर बेचेगा, वो भी डूबेगा. ये आवाज अंदर से आएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज, देन देयर इज नथिंग बैड. काम आ जाए. एनीहाउ, stock exchange is the financial index of the country, and follow the billions who are earning their bread and butter through stock exchange dealing. You can make your living through the dealings in shares, not sharing, shares, buying and selling. There are 2 stock exchanges in India, you know, National Stock Exchange and BSE. अच्छा, इनका न्यूज़पेपर कभी देखा आपने? इनके रेट्स आते हैं रोज, इनके रेट्स आते हैं. और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने रेट्स नहीं लिए. 4-5 कंपनियां छांटी, 4 कंपनियों के रेट तो हर कंपनी का, किसी का 480, किसी का 580, किसी का 300, किसी का 200 शेयर के रेट थे. आई वॉज नॉट कंसर्न्ड विद दैट. क्यों? सीबीएसई ने लिखा में 50,000 रुपीज, ये वर्ड लिखा, 50,000 रुपए बच्चों से इन्वेस्ट कराओ. 50,000 रुपए बच्चों से इन्वेस्ट कराओ. लिखने वाले तो लिख गए, उन्हें ये नहीं बताया ये बच्चे 17-18 साल के बच्चे ये तो कर ही नहीं सकते काम. कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते. लेकिन फिर भी हमने किया. एक चीज और बताया, अगर किसी की सोर्स हो तो जरूर करना है. वो ये है, एक बैंक है ICICI, सुना है ना? उन्होंने एक काम किया, एंड माय डॉटर इन रविंद्र कॉलेज, शी इनवाइटेड द बैंक. उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बनाई है एक तो पैसा है ना, ये 100 के नोट जो हमारे पास लीगल टेंडर, उन्होंने वर्चुअल मनी बनाया. They used virtual money, virtual shares, virtual demat, price actual, price जो है ना actual, वो आम नोट नहीं है, तो ऑनलाइन पे रखा हुआ अपना सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें पैसे भी हैं, उसमें वर्चुअल बैंक अकाउंट भी हैं सबके. हाँ भी कितना पैसा तेरा कितना पैसा, तेरा कितना पैसा, कि उनको दिया जाता है भी ठीक है ये स्टडी करो, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस शुरू करो. ये 5 कंपनियां आपकी है, टाटा मोटर्स एक है. हाँ, आप करोगे कितने शेयर खरीदे? टाटा मोटर्स की 100 शेयर, इसका रेट है 300 रुपए. कितने हो गए?
30,000, तो 30,000 वर्चुअल मनी में पे करना है। उसके बाद 2-3 दिन बाद कोई कहता जी कोई बच्चा कहता, स्टूडेंट कहता मेरे शेयर वो बेच दो, उन्हें 32,000 में बेच दिया। सो रेट लेने एक्चुअल मार्केट से या टीवी से रेट एक्चुअल लेने, पेमेंट इन वर्चुअल मनी और शेयर भी वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल शेयर तो भेज नहीं सकते, वो तो डिमांड से निकलेंगे। उन्होंने अपने वर्चुअल बनाया है। और फिर ICICI बैंक क्या करती है, जो बच्चा उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा कमाए इन वर्चुअल मनी, उसको वो एक अच्छा इनाम देते हैं। फाइनेंशियल में काफी पैसे का इनाम देते हैं, या बुक्स लेके देते हैं, कुछ लेके देते हैं। ये है एक दिमाग के अंदर बीज डालना उनके, कि इस तरह आज तो वर्चुअल है, कल को यही चीज एक्चुअल भी हो सकती है। लेकिन सिखाना उनको ये है, यही ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का भी, कि हमने रेट नहीं लिए। एक कॉलम आता है रिपोर्टिंग इकोनॉमिक टाइम्स में, उस कॉलम का हेडिंग है चेंज। कल से आज के रेट में चेंज कितनी है, व्हाट इज द चेंज। और 50,000 रुपया ये लेके चलो, ये वर्चुअल मनी है 50,000। और जब 50,000 रुपया हमने 5 कंपनियों में लगाना, 10,000 रुपये, और ये भी मान लें कि 5 ही बच्चे हैं, या एक बच्चा ग्रुप का लीडर है, उस ग्रुप में 10 बच्चे हैं, तो 5 ग्रुप हो गए, तो 50 बच्चे इन्वॉल्व हो गए, लीडर एक है उनका, ठीक है। वो बच्चा 5 बच्चे एक ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर साहब ये है मेरी 5 कंपनियां, मेरे टीचर ने बताई हैं, इनमें 9 बज गए, 9:30 बजे जब स्टॉक एक्सचेंज खुलती है, 9 बजे खुलती है, तो खुलते ही वो बच्चे जाएंगे, ब्रोकर साहब ये लो 10,000 रुपया, इतना ही है, एक कंपनी के इन्वेस्ट करो, 5 कंपनी में 50 लगा। यू गॉट माई पॉइंट। सवेरे 9 बजे गए, पैसा जेब में है, ब्रोकर को कह दिया लगा दो भैया, कौन सी कंपनी, ये 5 खरीद लो, पैसा लग गया। वहां आधा घंटा रुकेंगे, उसके बाद बच्चे वापस आ गए। 3:30 बजे फिर जाएंगे उसी दिन, ब्रोकर को बोला जी सारे जो सवेरे खरीदे थे बेच दो, लॉस हो गेन हो बेच दो। तो रोज खरीदना है, रोज बेचना है, एंड दिस बाइंग एंड सेलिंग इज बिजनेस। बिजनेस से ज्यादा आसान काम कोई नहीं है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, बिजनेस स्टडीज, अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर ये इस तरह से ये चलेगा। देयर आर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, देन नेक्स्ट दे प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रेजिंग ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टिंग। 3 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स टू फाइंड योर गेन बाय बाइंग एंड सेलिंग। 3 possible projects. Find your gain by buying and selling daily. What is your gain? Daily. रोज खरीदो, रोज बेचो। Prepare reports on daily changes. अब देखिए रेट एक्चुअल है, ब्रोकर को देके आते हैं, जो एक्चुअल रेट आएंगे टीवी पर या कोई भी, उन्हीं पर खरीदना है उनके। पैसा आप कोई भी मानो, वर्चुअल है या एक्चुअल है, कुछ भी। Then prepare reports on daily changes in the share prices through diagrammatic representation showing stability and volatility. Buying on first day and selling on the last day. ये भी हो सकता है कि शेयर खरीद के बैठ जाओ, 10 दिन का प्रोजेक्ट है, पहले दिन जाके खरीद के ले आओ, 10वें दिन बेच दो। Or else better it is, but here it is taken is, it is daily. Now next is project plan. This is the same as in the earlier projects. देखो ये प्रोजेक्ट प्लान वही है ना जो पहले बनाई थी। सारे प्रोजेक्ट कभी भी कोई बनाना है बस यही कर दो। कोई भी प्रोजेक्ट बना, देखो
प्लान बन गए। नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स, इसके लिए क्या कुछ चाहिए आपके, वो देखते हैं क्या निकलना उसमें से। फिर सोर्स मटेरियल, सोर्स मटेरियल, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कैसे करने हैं। प्रोसेसिंग शीट्स, 5 कंपनी 5 प्रोसेसिंग शीट्स, 5 कंपनियां 5 प्रोसेसिंग शीट्स। उसके बाद कंक्लूजन। अब देखिए कैसे बनाना है ये। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अर्निंग मनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग फ्रॉम 5 कंपनीज ओवर ए पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज का पीरियड रखा हमने, उसमें भी 1-2 दिन छुट्टी हो सकती है, ठीक है, सैटरडे और संडे। लेकिन ख्याल रखना आपके लिए संडे एंड मंडे यूजलेस है। यहाँ आपके बच्चे तो वो जाने हैं, उन्होंने डेली, यू कीप इट सैटरडे एंड संडे इज ओके। सैटरडे इज क्लोज, यू वोंट गो इन द मॉर्निंग। संडे इज क्लोज, यू वोंट गो इन द मार्केट। इट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। So stock exchange has something to give you to get it from 5 companies over a period of 14 days. ये इसका नेम है, आइडिया इज सेम। स्टॉक एक्सचेंज has something to give you, get it from 5 companies। ये 5 कंपनी आपको देंगे और काम 5 कंपनियां अच्छी चुननी है। उनका पास्ट देखिए, हिस्ट्री देखिए, प्रॉफिट मेकिंग है, शेयर प्राइसेस की ज्यादा वॉलेटिलिटी है या नहीं है उसमें, अर्निंग मनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, और कोई नाम अच्छा हो। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ स्टडी, सॉरी, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, टू आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज द बेस्ट। 5 कंपनियों में बेस्ट कौन सी है, टू ग्रेड ऑल द 5 कंपनीज, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विच दे आर। Then to know the total earnings over a period of 10 days, 14 days में हो सकता है 10 days ही निकले, कुछ छुट्टियां निकल जाएं। Over a period of 14 days to know the total earning, कितना कमाया आप देखना है इस प्रोजेक्ट में। This is actual prices used, पता नहीं था क्या निकलना। To know the result of the entire money, to know the result if the entire money had been invested only in best company। लेकिन वो तो बाई चांस है ना, पहले तो हमें बेस्ट का पता नहीं लगेगा 5 में से कौन सी बेस्ट है। लेकिन आप इमेजिन करो सारे हिंदुस्तान में कोई तो कोई ऐसा बंदा होगा जिसने सारा पैसा उसी बेस्ट मिल गया हो, 1 in millions, उसकी तो जिंदगी बन गई। चलो नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ स्टडी। ये देखिए टोटल थे 14 दिन, 2 दिन बीच में 4 दिन छुट्टियां चली गई, तो बाकी 10 दिन बचे, ठीक है। इस तरह से पीरियड ऑफ स्टडी बन गया। नाउ ऑन दीज डेज, ये है 4 कंपनियों के नाम, 5 के है नहीं, अच्छी छांटियां। पहले वो लेनी है कि जिनमें नुकसान होने के चांस ही बराबर रह जाए, कोई बात नहीं। तो ऐसी कंपनियां लेनी है तो जिनमें ग्रोथ हो और जिनमें प्रॉफिट कमाने के। बजाज ऑटो इज देयर, भारतीय एयरटेल इज देयर। अब प्री रिक्विजिट्स देखो, ये जरा देख लो प्री रिक्विजिट्स इन दिस प्रोजेक्ट। ये अकाउंट्स वाले प्रोजेक्ट में नहीं था, कई चीजें नहीं थी इसमें। इट इज प्योरली बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग और प्रॉफिट अर्निंग, दैट्स इट। A group of motivated students with a capital of 50,000. An enthusiastic teacher who himself or herself has sufficient experience of the stock exchange dealing, having the courage to jump into the pool rather than guiding from outside the pool. ऐसा होना, ये requirement है इसकी। Source material, cuttings from daily economic times, from the market page showing daily percentages on all the 14 days. For 5 selected companies, सारे 14 दिन नहीं 10 दिन बैठते हैं, 10 दिन की मार्केट से कटिंग लेनी है। और नेक्स्ट इज वेरेज, ये कटिंग हर रोज काट के हम। एक दूसरा कॉलम है, पहला कॉलम रेट का है, फर्स्ट कॉलम ऑन द लेफ्ट रेट का है, दूसरा कॉलम जो है छोटा सा
ये है परसेंटेज चेंज। ये सारा प्रोजेक्ट इस कॉलम पर बेस्ड है, परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज मुझे पता लग गया, कल मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था टाटा मोटर्स में, और टाटा मोटर्स के शेयर 2% इंक्रीज हुए, चेंज आई 2% चेंज। लिसन टू मी, टाटा मोटर के शेयर में मैंने 10,000 लगा दिया, चाहे उससे 4 शेयर आए, 10 आए, 15 आए, ब्रोकर को कहा 10 से ज्यादा एक पैसा नहीं लगाना, क्योंकि 5 कंपनी में लगाना। उसने 10 के शेयर दिए, 5 आए, 20 आए, 30 आए, जितने भी आए। My 10,000 is invested and the newspaper report says that the Tata Motors has changed by plus 2%. तो 10,000 पे प्लस 2 लगा लो, 10,000, मेरा 10,000 प्लस 2 बन गया ना। हाउ मच इट विल बी? 200 रुपया देंगे एक दिन में। बस इस तरह से पैसा इन्वेस्ट कराओ, उसके बाद रिपोर्ट देख लो न्यूज़पेपर की, परसेंटेज चेंज देख लो। 2 things will happen, either it is positive or it is negative। ऐसा है, ये एक्चुअल है। कई दिन नेगेटिव भी आई, पॉजिटिव भी आई। ये चीज आपने नोट करनी है। और ये चलता रहा 10 दिन, कटिंग चलती रही 10 दिन। डेट्स ऊपर लगी हुई है, सबके डेट भी। ये 10 दिन की कटिंग लगाई हुई थी फाइल के अंदर, जेन्युइन चीज सारी। मेरे पास एक कॉपी भी किसी ने बाद में देखनी हो तो एक कटिंग भी, जेन्युइन कटिंग असली भी पड़ी हुई है। अब ये प्रोसीजर, अब प्रोसीजर देखिए। रुपीज 10,000 विल बी, जैसे मैंने बताया था, सीधे जाना, उसे 10,000 10,000 10,000 देने, 50,000, उन्हें कहा खरीद लो। ये सब प्रोसीजर लिखिए। रुपीज 10,000 विल बी इन्वेस्टेड इन ईच कंपनी एवरी डे एट द ओपनिंग रेट्स एंड द एंटायर होल्डिंग विल बी सोल्ड एट द क्लोजिंग रेट। भेज देंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में परसेंटेज चेंज आपको नेक्स्ट डे पता लग जाएगी कि इतनी चेंज आई है, वो आपका बन गया, प्रॉफिट बन जाएगा या लॉस बन जाएगा, एक चीज होगी दोनों में। So the profit and loss can be found by multiplying the investment of 10,000 rupees by the rate of change. Next, if the rate of change is positive, profit हो जाए, rate of change negative, loss हो जाएगा। This process will follow by all the 10 days by preparing 5 processing sheets showing the profit or loss on each company. At the end of 10 days, the summary can be prepared for all the 50,000. सब पांचों कंपनी में 50,000 लगे थे, उनकी समरी बनेगी। The company that gives you the maximum profit will be the best. Now आगे देखिए, ये है next is processing sheet। देखिए ये 10 दिन हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये 10 दिनों की परसेंटेज चेंज है, ये कॉपी की गई, रोज कॉपी करनी है, एवरी डे इट इज कॉपीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो पहले दिन चेंज आई 0.6%। पैसा कितना लगा था इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो प्रोसेसिंग शीट 1 एसीसी की थी, ये एसीसी की। तो पहले दिन एसीसी 60 रुपए दे गई, दूसरे दिन एसीसी ने 50 दिए, तीसरे दिन बराबर कर गई, 160 रुपए का लॉस हो गया। ये एक्चुअल है ड्यूटी, दैट इज इट फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन, इमेजिन नहीं है। पहले 2 दिन का प्रॉफिट 110, तीसरे दिन लॉस आ गया, कोई बात नहीं भाई, सिखाता है कुछ, दिल नहीं तोड़ना किसी का, लगे रहो। आगे देखिए 40, ये 180 देगी फिर एक दिन में, फिर 40, फिर 50, 30, फिर 240 29 जुलाई को, फिर 80, और 10 दिन में 610 रुपया तो यही कंपनी देगी। Did you get? I'm not hurrying now. बिल्कुल आराम से है कि चेंज इज दी, असली है चेंज। मेरे पास कटिंग पड़ी है, बाद में दिखा देंगे हमको। उसमें वो ये जो कटिंग जोड़ी गई है, ये बकायदा न्यूज़पेपर से काट कर, ये एसीसी का। नेक्स्ट इज ये इसका ग्राफ बन गया, किस तरह से इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। फिर ये दूसरी कंपनी अशोक लेलैंड आ गई, ये देखो पहले दिन भी लॉस, पहले दिन डूब गया, दूसरे दिन भी लॉस, कंपनी अच्छी थी।
आ गई अपने लाइन पर 110, 220, 250, 50, 130, फिर 210 का लॉस, फिर 50, अल्टीमेटली 10 दिन में 370। ठीक भैया, ये काम पांचों कंपनियों ने किया। आगे इसका ग्राफ, यही सीरीज रखो। तो पांचों कंपनियों का फिर टोटल कर लो बाद में। एक लास्ट में एक नेक्स्ट इज, ये है ओवरऑल समरी बनाई। ये समरी है, ये वही पांचों शीटों की समरी है। भारतीय एयरटेल ने कितने दिए? 1650। एक्सिस ने कितने दिए? 800। बजाज ने ये, एसी ने ये, और ग्रैंड टोटल 4170 रुपया 10 दिन में सच्चा कमाया। झूठ नहीं है इसमें कोई। ये लॉस भी हो सकता था, मुझे तो सिखाना है। लॉस भी हो जाता, डर के भागना नहीं है। अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं, पता नहीं कब आते हैं वो भी पता नहीं। अच्छा ये देखिए ग्राफ इसका ग्राफ भी देख लीजिए। भारतीय एयरटेल से लेकर नीचे तक ओवरऑल। अच्छा एक ये ओवरव्यू, ये भी अच्छा है, इसको भी बनाना। अल्टीमेटली इसका लास्ट कॉर्नर देखो, वो वही है 4170। इधर से टोटल कर लो तो भी वही है, इधर से करोगे तो भी वही बनेगा। दिस इज ओवरऑल व्यू डेट वाइज। लेफ्ट हैंड साइड है ये डेट वाइज, और इधर को कौन सा है? एक चार्ट जो सबको सामने आ जाता है। बस अब लास्ट पेज पे पहुंच गए हम। बिल्कुल सही है, आई एम नॉट हरिंग इट अप, दिस हाउ इट इज डन। ये कंक्लूजन है। इसको देखो क्या है। फर्स्ट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ भारतीय एयरटेल, ठीक है, तो बेस्ट हो गई है। ऑन डेली बेसिस 23 जुलाई हैपेंस टू बी द बेस्ट डे। दिन देख लो, 23 जुलाई सबसे अच्छा दिन है। They earned 1460 on an investment of 50,000 with over 5 companies. इस दिन 5 कंपनी में लगा के एक दिन में 1460 रुपया कमाए। It turns out to be 2.92% डेली बेसिस, एक दिन का। 365 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ जाता है आपका दिन साल का। नेक्स्ट, the worst days were 21st, yes, 310 loss, and 22nd, that was 50 loss, yes, when investors suffered a loss. These losses, however, were recovered on 23rd July. Overall profit of 4,170. Now, however, earning of 4,100, फिर हिसाब लगाया मैंने। कितने दिन बिजनेस किया? 10 दिन। कितना पैसा लगाया? प्रॉफिट कितना हुआ? 4170। 4070 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100, ये 10 दिन की आ जाएगी। ये रेट कितने दिन का आएगा? 10 दिन का। इसको साल में कन्वर्ट करके देखो कहाँ जाता है। आपका 50,000 फिक्स डिपॉजिट में 10 दिन में क्या देता है? कुछ भी नहीं। और ये 10 दिन में 4170 लेके गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस सिखाना है तो भैया उसे एक्चुअल लाइफ से सिखाइए, एक्चुअली सिखाइए। डेली लाइफ से लीजिए एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। सो यू हैव टू टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, वेदर इट इज ए प्रोजेक्ट और यू आर टेकिंग टॉपिक इन द क्लास। अगर वो इस तरह से होगा तो बिजनेस स्टडी पढ़ाने का मुद्दा कुछ और होगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। These all presentations would be available here. Certificates, what's the situation? After the lunch, see, we are going to put it alphabetically on different locations. Alright? On different locations, we will keep it alphabetically. I'll let you know which location for A, B, C, D or something like this. So thank you so much for your time, and we'll keep meeting again and again like this. I would like to request Dr. Saab to bless us all, and thank you so much.